So we are going to solve the same sum with a yield method, but yield के अंदर two methods are there. One is earning basis, another one is a dividend basis. तो सबसे पहले हम dividend basis से sum को solve करेंगे कि earning, तो earning basis, ठीक है. The turnover, net profit and dividend paid on equity share for the last 3 years ended 31st March 2003 are given below. You have a turnover for last 3 years, you have a net profit as well as you have a percentage on the dividend is given. Percent dividend on equity shares. Equity shares पे कितना dividend मिल रहा है. Now first we will be starting with an earning method. Yield method में जैसे ही earning method आया, हमें click होना चाहिए कि we have to do with the 3 stages, 3 steps था. First step is calculation of profit available to equity shareholder, जिसको हम FMP भी कहते थे, future maintainable profit. If you remember, our statement starts with expected profit before tax. यहाँ पर हमारे पास expected profit नहीं है, बल्कि last 3 years के profit दिए हैं. तो how to find it? We can calculate एवरेज प्रॉफिट बाय दिस. ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं. एंड अगर आप देखो तो टैक्स रेट भी नहीं दिया है, तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सिंस हमें टैक्स रेट नहीं दिया है, वी आर अज्यूमिंग इट दैट दिस विल बी नेट प्रॉफिट विच विल बी आफ्टर टैक्स. पर 3 साल का दिया तो कैसे करेंगे, 3 इयर्स का दिया है तो हम एवरेज ले लेंगे. So particulars rupees, and you will be writing down over here that you are going to first calculate an average profit. 3 years का जो भी profit दिया है उसका average ले लो. So 3,05,000 plus 4,50,000 plus 5,60,000. divided by 3 because 3 years का profit दिया. Tell me the amount. 4,38,332. 4,38,333. ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट which we are assuming that this is a profit after tax. Now हम क्या सबट्रैक्ट करते हैं इसमें से, अगर रिजर्व्स हुआ तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एंड अगर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे करते दैट वी सबट्रैक्ट इट अप. नाउ अगर ये क्वेश्चन देखो तो इसमें हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट वी हैव अ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 4 लाख रुपीज इज अ कैपिटल, उसका 8% विल बी योर डिविडेंड. सो यहाँ पर करेंगे हम लेस प्रेफरेंस डिविडेंड. ₹4 लाख का 8% इट इज 32,000. Subtract 4,06,000. whatever is the amount that is a profit which is available to equity shareholder. Tell me how to do that. 4,06,300. 4,06,333. So this is your profit which is available to equity shareholder. Now we have to start with step number 2. Step number 2 is calculation of ERR. Expected rate of return. What is the formula? Profit available to equity shareholder divided by share capital into 100. Why into 100? Because we
कॉरेस्पॉन्ड इन अ परसेंटेज फॉर्म. सो जो भी स्टेप नंबर 1 का आंसर आया दैट विल बी द न्यूमरेटर 4,06,333 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. पेड अप वैल्यू हैव टू टेक इट अप जो कितना है 3 लाख रुपीज. सो डिवाइड बाय 3 लाख 130 इंटू 100 कितना अमाउंट आया 135.44 135.44%. मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 135% अप्रोक्सीमेटली. अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन देखो परसेंटेज की 135.44%. नेक्स्ट थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर. हाउ यू गेट द वैल्यू ERR डिवाइड बाय NRR इनटू 100. ERR हमें जस्ट मिला कितना आया ERR 135.44 divide by NRR is given in the question. Read the last line. Fair return is 12%. Paid up value per equity share. एक इक्विटी शेयर कितने का है 10 रुपीज. So multiplied by 10. 112.87 per share. ये इल्ड मेथड में अर्निंग बेसिस से हमें आंसर आया वैल्यू पर शेयर. नाउ इल्ड बेसिस में ही वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. नाउ डिविडेंड भी अगर आप देखो तो 3 इयर्स का डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दिया है हमें. वी हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर 3 इयर्स. सो हमें पहले एवरेज डिविडेंड लेना पड़ेगा फॉर इट. टेक अ एवरेज डिविडेंड फर्स्ट 3 इयर्स का 15% plus 15% plus 18% divided by 3. This will be equal to 16%. So we got an average dividend of 16%. Now, value of an equity share. How you will get the value of an equity share? Average dividend into paid up value per share divide by NRR. सेम फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लेते थे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स रेट ऑफ रिटर्न. जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या ले रहे हैं एवरेज डिविडेंड. रेस्ट द फॉर्मूला इज सेम. सो दिस विल बी इक्वल टू 16% divided by NRR was 12% multiplied by 10. Rupees 13.33 per share. ये वैल्यू आया फ्रॉम डिविडेंड बेसिस. फर्स्ट पहले पूरा सम ये एक बार चेक कर लो. देन वी विल बी गोइंग टू द फेयर वैल्यू बिकॉज अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है. They have asked us to calculate the fair value and I told you कि fair value का मतलब होता है intrinsic value plus yield value. Yeah, equity share is intrinsic value plus yield value divided by 2. अब yield value में हमने दो मेथड से किया है, एक अर्निंग बेसिस से और एक डिविडेंड बेसिस से. तो 2 टाइम्स हम फेयर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. लेट्स सी हाउ. नाउ उसके लिए पहले चेक करते हैं कि नेट एसेट मेथड से हमारा आंसर क्या आया था. सो नेट एसेट मेथड से हमारा आंसर था 14.67 पर शेयर. पर शेयर. यील्ड मेथड में पहले अर्निंग बेसिस पर देखते हैं. अर्निंग बेसिस से क्या आंसर आया 112.87 पर शेयर. डिवाइडेड बाय 2 63.77. Same way, again we will find out the fair value, that is value of a share.
यहाँ पर जो किया वो अर्निंग बेसिस दिया, सो हियर आई एम राइटिंग इट डाउन अर्निंग बेसिस इन द ब्रैकेट, और अब लेंगे वो डिविडेंड बेसिस लेंगे, सो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस yield value, but in bracket now it will be dividend basis divide by 2. We have an intrinsic value with us 14.67 and we have a dividend basis पर जो अभी हमने कैलकुलेट किया 13.33 per share. Divided by 2, we will get the value per share. 14. So this is how you have to calculate the fair value.